Assalamu alaikum everyone and greetings to all. Thank you very much to our listeners who have joined us today. Basically, this is our fourth session on looking at the businesses who continued during the COVID situation. As you know, we have done our previous sessions for pharmaceutical industry, textile industry, and we've also invited someone from the regulating body as well. So this session is aimed at another sector which kept going despite all the chaos created by COVID-19 because they are the hub of economy. So they bridge all the consumers, they bridge all the businesses, and even the governments together. So I'm talking about nothing else but the banking sector. Obviously, as you know, that banking had a lot to do during this crisis, and there were a lot of expectations. Not only that, but they had to quickly switch from the way they work. They had to quickly switch the dimension of their strategy. They also have to quickly look into adaptations that they will require to the new normal. They also had to look into another dimension which will be crucial for the development of this sector and many other sectors, and it's about the training and development of the organization and the skills required. So today we have invited Mr. Guraha. Ansar Raza Guraha is a known name. He is the EVP and Divisional Lead Learning and Management Development for National Bank of Pakistan. He's very insightful when it comes to the strategic dimension of the training and skills that will be required for the future. So he's here today with us to talk about the future of training. So, Assalamu alaikum, Mr. Guraha. Thank you for joining us. Walaikum Assalam, and thank you very much for inviting me on this forum. Uh, I think I'm fortunate to express my views and say little relevant Sure. things about training and Ji. development of HR of National Bank of Pakistan in general, and in particular, I mean, you can take Bilkul. the lead. You Yeah. can take the lead. थैंक यू सो गुराहा साहब, पहले सबसे मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आपका जर्नी क्या है इस लर्निंग एंड डेवलपमेंट फील्ड में? देखिए जैसे रूटीन में अ, बच्चे पढ़ते हैं और कोई ना कोई नौकरी ढूंढते हैं, तो आई हैड माई ड्रीम दैट आई शुड बी connected with a financial institution, particularly bank, because I was more interested to join uh, any financial institution. एक तो मैंने इकोनॉमिक्स में किया था ग्रेजुएशन, दूसरा ये था कि बिजनेस की डिग्रियां थी, तो लकीली नेशनल बैंक में सेलेक्ट हो गया. 18 years I spent in the field. I have been the branch manager, I have been the field officers, I have been the zonal manager as well, and I mean मैंने हर सीट पे काम किया. I was a passing officer, branch manager, back office officers, ऑडिट करवा रहे हैं, कभी यूटिलिटीज ले रहे हैं, कभी डिपॉजिट बढ़ा रहे हैं, कभी लोन्स कर रहे हैं, कभी गोल्ड कर रहे हैं, लाइक all the activities. So it kept me busy for almost 18, 19 years in the field. ओके. So then I joined training. In 99, मैं एक कोर्स में गया, तो I found it very interesting that when you share your knowledge, see ये कोई बैंक में जो ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है वो यूनिवर्सिटीज की ट्रेनिंग नहीं है. यूनिवर्सिटीज में जो एक कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है उसकी बेसिस में आपने जॉब लेनी होती है. बट हेयर इन द बैंक्स यू जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस. सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू शेयर विद माय फेलो कोलीग्स कि यार आपकी जगह पे जब मैं होता था इस सिचुएशन में तो ऐसे करता था, ऐसे करके डिसीजन लेता था. जब मैं ब्रांच मैनेजर था, जब मुझे टाइमिंग्स का मसला होता था, डिपॉजिट का मसला होता था, लोन्स का मसला होता था, डिस्बर्समेंट करनी होती थी, लेट पेमेंट करनी होती थी, चेक रख के पेमेंट करनी होती थी, लोन्स वगैरह को स्टॉक्स वगैरह को उठवाने होता था, डील्स हो गई हैं, लाइक मैनी थिंग्स. तो आई कुड हैव जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंसेस, एंड देन it comes to banking laws and practices and other things.
देन SOPs वगैरह आ गया, प्रोडेंशियल रेगुलेशंस आ गई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया, KYC आ गया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आ गया, मतलब बैंकिंग का पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता बदलता चला गया. तो it was very easy for me to share my past experiences. But जो सबसे ज्यादा जबरदस्त बात थी वो ये था कि मुझे खुद से पढ़ना पड़ता था. मतलब if you wanted to teach someone, if you wanted to share your experience and learnings with other people, you must know the rules and regulations, the SOPs, the manuals, the regulators की जो requirements हैं, जो इंटरनेशनली जो प्रैक्टिसेस बेस्ट चल रही हैं, जो आपके फेलो कोलीग्स चला रहे हैं, दूसरे बैंक्स में जो ट्रेनिंग वगैरह हो रही हैं. सो इट वाज ऑल इन ऑल वेरी the wonderful journey towards training. So I joined the trainer as a trainer in Islamabad. It took me like 10 years, 10 years to establish my market. और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कहता कि if not the best, but I was one of the best trainer in the market. अब मतलब FIA की ट्रेनिंग भी मैं कर रहा हूँ, पुलिस वालों की ट्रेनिंग भी मैं कर रही हूँ, नैब की ट्रेनिंग्स के लिए भी मैं स्याला जा रहा हूँ, सारे बैंक्स में भी जा रहा हूँ, हबीब बैंक में जा रहा हूँ, UBL में जा रहा हूँ, लाइट, मुस्लिम, मतलब कोई बैंक ऐसा नहीं था कि जो मुझे एज ए विजिटिंग फैकल्टी नहीं लेता था. सो मेरा ट्रेड का एरिया होता था. तो आई रियली एंजॉयड दैट पीरियड ऑफ माइन. तो लाइक 18-20 साल तो फिर ट्रेनिंग में ही लग गए. सो आई वाज first the corporate trainer, then I was managing the trainings as well. We have we have 5 staff colleges at Karachi, Lahore, Islamabad and Peshawar. So we have a very good infrastructure in National Bank of Pakistan as far as training and development is concerned. तो ये जो सारे 4-5 स्टाफ कॉलेजेस हैं हमारे, इनको एरिया बांटा हुआ है. कराची जो है वो सिंध और बलोचिस्तान का देखता है, लाहौर में पंजाब आ जाता है, मुल्तान में पंजाब आ जाता है, इस्लामाबाद में भी कुछ एरिया पंजाब का आ जाता है, सेंटर का एरिया आता है, कश्मीर का एरिया आ जाता है. देन वी हैव पेशावर एज वेल फॉर NWFP. सो वी हैव वेरी गुड फैकल्टी लर्निंग, मतलब फैकल्टी मेंबर्स बहुत जबरदस्त हैं, पढ़े लिखे, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. मतलब वी हैव ऑल द टीचिंग एड्स, द ट्रेनिंग एड्स, क्लासरूम्स हैं, नेटवर्क्स वगैरह सारे, उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी है. I think if not the best, one of the best training environment as far as Pakistan is concerned. So we have here in National Bank of Pakistan. बिल्कुल, बेसिकली यही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, इसीलिए आपको आज पॉजिटिव इम्पैक्ट ने इनवाइट किया, क्योंकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूट नाउ व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग. और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस वक्त हम प्रोफेशनल लर्निंग में होते हैं, इट्स ऑल अबाउट अप्लाइड लर्निंग. सो इट्स टेक्स्ट बुक्स नहीं होती, थ्योरी नहीं होती, प्रैक्टिकल ऑन हैंड, बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग होती है. तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो कोविड की सिचुएशन आई और वर्ल्ड ओवर आई, सिर्फ हमारा मुल्क नहीं, बहुत से दुनिया का ऑलमोस्ट मोर लेस हर मुल्क और हर बिजनेस इम्पैक्ट हुआ उससे. तो जो ये सिचुएशन है, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में क्या फर्क आएगा या क्या फर्क आया है? पाकिस्तान जैसे कंट्री में खास तौर पे अगर हम बात करें, तो अगर आप देखें तो हमारा जो लिटरेसी रेट है जी, वो देखा जाए तो 60-70% से ऊपर नहीं है. और उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो सिर्फ अपना नाम लिखते हैं. जी, मतलब व्हाट टू टॉक ऑफ कि हम उनको ऑनलाइन या रिमोटली उनको ट्रेनिंग दें. क्योंकि अब फ्यूचर में तो नज़र ऐसे आ रहा है कि जैसे लोग बड़े दूर दूर बैठे होंगे, आपको क्लासरूम की ट्रेनिंग की ऐसे ज़रूरत नहीं होगी. आप जहाँ पे भी हैं वहीं पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी चली जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि कैसे करना है और क्या करना है रिमोटली. मतलब ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बेहतर चाहेंगी कि अपने स्टाफ की और उनको मतलब उनको अलाउ किया जाए कि यू शुड बी वर्किंग फ्रॉम होम, और कमिंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स एंड रीचिंग आउट टू योर कस्टमर्स थ्रू टेक्नोलॉजी. अब दो चीजें हैं, एक इंफॉर्मेशन है, एक टेक्नोलॉजी है. इंफॉर्मेशन तक तो पहले लोग किताबों से पहुंचते थे, क्लासरूम में आके टीचर से पूछ लिया, ट्रेनर से पूछ लिया, टेलीफोन करके पूछ लिया, बॉस से पूछ लिया, तो कोई इंफॉर्मेशन ले ली. अब सबसे आसान तरीका अब ये रह गया है कि आप
गूगल पे चले जाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, वहां पे जाके कनेक्ट हो जाएं, कनेक्ट होके जैसे आप और मैं अभी हम बात कर रहे हैं, देयर इज नो नीड टू गो एनीवेयर, जी मतलब बिल्कुल द इंस्ट्रक्शंस कैन बी प्रोवाइडेड टू यू एट योर प्लेस। बिल्कुल आपको जस्ट यू नीड नेटवर्किंग, नेट का आपको इस्तेमाल होना चाहिए और जी आपको इस टेक्नोलॉजी को यूज करना आता हो। लेकिन देखा बिल्कुल जाए कि जो मैंने अभी बात की है कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि सिंपल अपना नाम लिख सकते हैं। लाल दीन को आगे सिर्फ लाम लफ लाल सिखा दो और आगे लाम लिखाना, हम उसको भी लिटरेट मान लेते हैं। हमारे बिल्कुल मतलब मैं बैंकर के हवाले से बात करता हूँ कि हमारे यहाँ सिर्फ अंगूठा जो लगाता है उसको हम समझते हैं कि यार ये इलिटरेट है। अंगूठा लगाता है, हम्म तस्वीर अपनी देता है बैंक में और बिल्कुल खुद आता है, चेकबुक लेता है, किसी से भरवाता है, दूसरा बंदा उसको वेरीफाई करता है। लुक एट द पैटर्न वी आर हैविंग इन द बैंक। बिल्कुल और मतलब इस तरह की आपकी क्लाइंटेल का बेस है। बिल्कुल आपके जो लेस देन मैं कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि हाफ हाफ ऑफ योर कस्टमर्स, बिल्कुल आपके आधे से ज्यादा कस्टमर जो है 22 करोड़ की आबादी में तकरीबन 10 से 12 करोड़ लोग आपके ऑलमोस्ट इलिटरेट हैं। तो जी आपका जो क्लाइंटेल का जो बेस है उसमें जा करके आपके पास बहुत कम गुंजाइश है कि आप उनको उस तरीके से लेके चले जाएं। देखिए बैंकर की जो आप डेफिनेशन को अगर आप लेते हैं तो जी हमें तो सिंपल यही बताया गया था जब स्टार्ट में हम लोग बैंक में आए थे कि बैंकर इज द पर्सन हु एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड हाँ लैंड जी इट आउट टू द प्रॉफिटेबल एवेन्यूज एंड टू अर्न द प्रॉफिट। बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल डेटर और क्रेडिट का रोल था, आपने एग्जैक्टली पैसे ले लिए, उसकी अमानत आपके पास है, आपने उसको चेक बुक इश्यू कर दी, आपने उसका चेक ले लिया, उसको पेमेंट कर दी, आप उसने सिग्नेचर ले लिए, सिग्नेचर वेरीफाई कर दिए। अब मैं आपको यूएसए की मिसाल दूं, जब मैं वहां पे गया पढ़ने के लिए, इट वाज 2008, तो मैं ज़ाहिर बैंकर था, मैंने अपना चेक उनको दिया, तो टेलर ने मुझे उस वक्त पैसे दे दिए, आप भी इस बात पे गवाह होंगे। जी तो आई जस्ट आस्क्ड हर कि you didn't I mean see my signatures, you didn't verify my signatures as well. कहता नो मिस्टर गुराहा योर नेम इज देयर, मेरे पास जो मॉनिटर है इसके ऊपर आपका नाम आ रहा है एंड टू पुट द करेक्ट सिग्नेचर इज योर रिस्पांसिबिलिटी नॉट माइन। वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग ठीक है, तो अब ये बिल्कुल अपन साइन वगैरह देखना आप ही का काम है। प्रैक्टिस हैव बीन चेंज्ड एंड आई रिमेन्ड देयर फॉर 2 इयर्स इन, और मुझे बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है कि बीइंग बैंकर आई वाज वेरी क्यूरियस कि यार मैं मुझे बैंक जाने की क्या जरूरत है, यस मतलब मैं बैंक किस लिए जाऊंगा। हर चीज जो हर सहूलत मुझे मिल रही है, मतलब ऑनलाइन मिल रही है, मैं अपना लैपटॉप बिल्कुल खोलूंगा, मैं अपनी ट्रांजेक्शन के ऊपर कर्सर रखूंगा, मुझे बता दिया अगर यहाँ पे आप आपने मूवी ऐसे ही देखी है है, आपने खाना खाया है, आप क्लब गए हो, आपने मेडिकल की पेमेंट दी है, आपने शॉपिंग की है, आप मॉल में गए थे फलान। सो द बैंक जो ओरिजिनल आपका जो कॉन्सेप्ट था कि आपके पास कस्टमर आ रहा है और आप उसके सिग्नेचर वेरीफाई करके उसको आप 2000 3000 5000 जी 20,000 50,000 उसकी पेमेंट कर रहे हो और ये वो उसी के पैसे हैं, आप उसको पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप उससे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसको लोन दे रहे हो, आप उसको सर्विसेज दे रहे हो, आप उसको प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। लेकिन यह है कि ऑलमोस्ट 70-80% आपके कस्टमर्स आपको विजिट करते हैं। आपके 15,000 पूरे मुल्क में एटीएम है, आपकी ऑनलाइन सर्विसेज का हाल क्या है? आपको पता है कि ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, इज मच मच लेसर ऑब्वियसली जी एंड बिल्कुल दैट ऑफ जो एब्सोल्युटली कि आपका कस्टमर आपके पास अगर आके आपसे कोई सर्विसेज लेता है, वो ट्रांजैक्शन को जाके $4 to $5 है, जबकि वो 30 सेंट्स में बनती है। मतलब ये उस जमाने की मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ जी कि जब बिल्कुल मैं उधर बिल्कुल था और ऐसे हमने ही ये रिसर्च किया था, और अभी भी आप देखें तो वो पर ट्रांजैक्शन बड़ी कॉस्टली पड़ता है। लेकिन ये है कि इसके मुकाबले में अगर ऑनलाइन सर्विस आपको उसको दिए हुआ है, आपका डिपॉजिटर जो है, आपका कस्टमर जो है, वो अपने घर पे बैठ के अपने ऑनलाइन ही सारी सर्विसेज ले रहा है, देन यू डोंट नीड हिम टू विजिट द बैंक। अच्छा, बिल्कुल अब सवाल ये पैदा होता है कि बैंक में जो आपका स्टाफ है, व्हाई यू नीड देम? अगर ये सारा बिल्कुल काम ही क्योंकि दिस ऑनलाइन इज सर्विसेज हो जानी बिल्कुल है, सही बात है so बिल्कुल why क्योंकि you need your people हाँ here in जी the branches, in the offices? जी Why you need to spend in the offices? वो प्रीमिसेस हैं, उनको प्रेमिसेस मतलब सारी बिल्कुल सपोर्ट देना पड़ेगा वो।
तो मसला वही अगेन वही आ जाता है कि द सेगमेंट जो मार्केट सेगमेंटेशन में अगर आप जाते हैं, जी, तो जिस तरह के लोगों को आप डील कर रहे हो, हमारी मार्केट अभी उस तरह की नहीं है। हमें ठीक है, अभी कस्टमर को डेवलप करना पड़ेगा, हमें अपने स्टाफ को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और फिर आगे कस्टमर को भी देखिए, मैं आपको एक पुराना एक बताता हूँ, सप्लाई चेन का जो एक मेथड है, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्शन वगैरह करती हैं, जो अपनी प्रोडक्ट्स को वगैरह, वो अपने पूरी सप्लाई चेन का, अपने ग्रोअर्स का, अपने रॉ मटेरियल देने वाले का भी पूरा ख्याल रखते हैं। अब जैसे चीनी का कारखाना है, चीनी वाला जो है वो गन्ने वाले का पूरा ख्याल रखेगा। तो जी, बोलेगा पता है कि ये गन्ने वाला अगर कमजोर पड़ गया तो मेरी फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। बिल्कुल, इसी तरह मतलब कोई भी और मिसाल ले लें, जहां से भी आपका रॉ मटेरियल आता है, वहां पे आपको अपने वो जो सप्लाई चेन है आपकी, उनको पूरा का ख्याल रखना पड़ता है, उनको फाइनेंस करना पड़ता है, उन ग्रोअर्स के साथ बिल्कुल, मतलब विजिट्स करनी पड़ती हैं, उनके साथ मार्केटिंग करनी पड़ती है, उनके साथ बिल्कुल, राब्ता रखना पड़ता है, ताकि अगर वो सीजन में, यानी जहां से सीजनल प्रोडक्ट्स आपके पास आनी है, वो सीजन आएंगे, मतलब कपास आएगी तो वो ऑब्वियसली बनेगा, आगे धागा बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, जी, कपड़ा बनेगा, जी, गन्ना और ये राइस वगैरह उगेंगे तो राइस की फैक्ट्रियां चलेंगी, बिल्कुल, गन्ना बनेगा, चीनी बनेगा, लाइक आगे प्रोडक्ट्स बनेंगी। अच्छा, ये मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ कि ये लोग दे पीपल ट्राई टू रीच आउट टू देयर ग्रोअर, इवन जी, वो जो जो सप्लाई चेन करते हैं, बिल्कुल, उन तक पहुंचते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं, उनके साथ यानी जो कस्टमर सर्विस उनकी ये है, कस्टमर्स का भी ख्याल रखते हैं, ताकि बिल्कुल, कल को इनके ऊपर अगर बैड टाइम आया तो हमारा सारा सिस्टम आउट ना हो जाए। हम लोगों बिल्कुल, ने तो इन्हीं से कमाना है। तो जी, मैं अब सर्विस इंडस्ट्री की अगर बात करता हूँ, हम लोग क्या बेचते हैं, वी आर ए सर्विस इंडस्ट्री। हम बिल्कुल, लोग सर्विसेज ही बेच रहे हैं। बैंक में बैठ के हम लोगों ने क्या करना है, वी आर सेलिंग आउट आवर सर्विसेज एंड दैट्स ऑल। बिल्कुल, हमारी प्रोडक्ट क्या है, देखें, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम है, सारे बैंक्स की प्रोडक्ट्स एक जैसी हैं। कोई फ्लेक्सी लोन दे रहा है, कोई फ्लेक्सी लोन दे रहा है, कोई पर्सनल लोन दे रहा है, कोई कार लोन दे रहा है, ऐसे ही कोई है, कोई इस तरह के, यानी लेकिन दे सब वही रहे हैं। कोई एग्रीकल्चर दे रहा है, किसी का बिजनेस का नाम है, मतलब सारे लोन्स एक ही जैसे हैं, ये प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट एक जैसी है, एटीएम की सर्विसेज सारे दे रहे हैं। लेकिन what is the differentiating factor? The differentiating factor is your services, and that's बिल्कुल, all. बिल्कुल, जितनी अच्छी सर्विस की क्वालिटी आपके पास होगी, जितनी अच्छी आपकी वर्किंग इन्वायरमेंट होगी, जितना स्पीडी आपका नेटवर्क होगा, जितने सिस्टम्स आपके ज्यादा अच्छे होंगे, उतना ज्यादा आप कस्टमर की केयर कर सकोगे। और जब आप कस्टमर की केयर कर सकोगे, the customer will be more satisfied and he or she will be banking with you, and that's बिल्कुल how you ऐसे will ही be है, earning. तो बिल्कुल, आपने क्या करना है, आपने अपने कस्टमर का ख्याल रखना है। और कस्टमर का ख्याल रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यू नीड टू ट्रेन योर स्टाफ एज टू हाउ दे शुड बी रीचिंग आउट टू देयर कस्टमर्स। हाँ और जी, उसके बिल्कुल ऐसे ही है, जो भी जो भी टेक्निक अपनाएं, उसके लिए जो भी तरीकाकार अपनाएं। जैसे अभी हमने ये कोविड की सिचुएशन में खास तौर पे अपने स्टाफ को बोला है कि यार अब क्लासरूम की ट्रेनिंग तो नहीं हो सकती, हम आपको ऑनलाइन ट्रेन किया करेंगे। आपके जी, कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन। जी, नेशनल बैंक का ई लर्निंग का एक पोर्टल है, हमने ई लर्निंग के पोर्टल के ऊपर 40-50 रेगुलेटरी कोर्सेज वो जो मस्ट है उनको करने के लिए वो वहां पे डाल दिए, एंड दे आर कमिंग अप टू दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। और वहां से वो रीच आउट करके अपनी क्विजेज भी दे रहे हैं, टेस्ट भी क्लियर कर रहे हैं, पास आउट भी हो रहे हैं। और अगर कोई इनको इन्फॉर्मेशन मजीद चाहिए, कोई क्लैरिटी चाहिए, तो हम उनकी जूम मीटिंग्स अटेंड कराते हैं, टीम मीटिंग्स, वेरी गुड, माइक्रोसॉफ्ट ठीक है, टेक्नोलॉजी के जरिए हमारा स्टाफ, हमारे फैकल्टी मेंबर जो है उन तक दे रीच आउट। प्लस टेलीफोन लाइंस भी अवेलेबल है। तो अंडर दी सिचुएशंस, इस सिचुएशन पे हम अपने स्टाफ को खास तौर पे बोल रहे हैं कि भाई तुमने अपने आप को पहले तो तैयार करना है, एंड देन यू नीड देन यू नीड टू रीच आउट योर कस्टमर्स एज वेल। बिल्कुल, मतलब क्लाइंटेल्स के साथ आप डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएं। आप उनके साथ, आप अपने जो जो आपके देखें, हर बैंकर के पास जो है वो इंपॉर्टेंट कस्टमर्स भी होते हैं। बिल्कुल, मतलब कई तो रूटीन के कस्टमर्स होते हैं जो कि छोटी मोटी सर्विसेज लेते हैं, डिपॉजिट करा दिया या कोई रिमिटेंस में इस तरह की कोई टीटी शीटी लगवा दी, कोई 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 इंस्ट्रूमेंट बनवा लिया, कोई छोटा मोटा बिजली का बिल जमा करा दिया, कोई यूटिलिटीज कर दिया। ये हमारे कारपोरेट क्लाइंट्स बड़े होते हैं जहाँ के इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस या वगैरह उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल, मल्टीपल उनकी लिमिट्स होती हैं, इंपोर्ट्स की लिमिट भी हैं, एक्सपोर्ट की लिमिट्स भी हैं, फिल्म की फैसिलिटी भी ले रहा है, लाइक
कारपेट के सारे मतलब वो हमारे जी मेजर क्लाइंटेल में आता है और जहाँ बिल्कुल से हमारी मैक्सिमम अर्निंग्स वगैरह भी होती है, या उनका अपनी खास तौर पे ख्याल रखना है. सो जाहिर है व्हाट वी जाहिर आर एजुकेटिंग आवर पीपल इज टू बिल्ड अप द रिलेशनशिप बैंकिंग. रिलेशनशिप में हाँ जैसे जी आप रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, आपके पास 150 क्लाइंट्स हैं, आप उनका पूरा ख्याल रखेंगे. मतलब जी उस लेवल पे जाके आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें, उनको प्रॉम्प्टली सर्विसेज बिल्कुल दें, उनको फैसिलिटेट करें, उनकी प्रपोजल्स वगैरह को देखें, उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को देखें, और साथ साथ आप बिल्कुल बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक उनको फॉलो अप करें. तो बेसिकली जो डायमेंशन है ट्रेनिंग की वो मोर कस्टमर ओरिएंटेड होती जा रही है ओ यस, जी बिल्कुल. बिल्कुल ठीक है तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक जो लीडर्स हैं ठीक है किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो लीडर्स हैं व्हाट विल बी देयर रोल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इनटू दिस न्यू डायमेंशन और उसके लिए ऑब्वियसली इकोनॉमिक ड्राइवर्स चेंज हो गए हैं वर्ल्ड ओवर सो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजिक एक्शंस हैं सो अगर आप ये वेरी क्विकली इसको रैप अप करते हैं तो दैट विल बी रियली गुड एंड बेनिफिशियल फॉर एवरीवन तो देखें, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे बिलीव करते हैं कि कोऑर्डिनेशन के साथ, सब लोगों के साथ, टोटल कोऑर्डिनेशन के साथ सब ने अपना अपना रोल अदा करना है. मैकेंजी का एक मॉडल था, मैंने इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन भी किया, अपने बोर्ड को भी बताया, अपने कोलीग्स को भी बताया, मैनेजमेंट कमेटीज में भी बताया कि 7S मॉडल जो है वो एक आपको सस्टेनेबल ग्रोथ देता है मॉडल. इसमें ठीक क्या है है? स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाफिंग, स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, शेयर्ड वैल्यूज और स्किल लेवल. अब दो तीन चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल हमारे साथ उनका ताल्लुक है. एक तो स्किल लेवल, एम्प्लॉय का स्किल लेवल अगर उसका बेहतर होगा तो डेफिनेटली वो अपने कस्टमर्स को रिफ्यूज भी नहीं करेगा, काम की तरफ उसकी इंक्लाइनेशन भी होगी. और जब वो बिल्कुल पैदल होगा, उसको काम भी नहीं आता होगा, वो तो फिर क्या करेगा? वो कस्टमर को भगाएगा, बहाने भी लगाएगा और अपने आप को भी एक्सपोज नहीं होने देगा कि मुझे काम नहीं आता इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ. लाइक यू नीड टू बिल्ड अप दी स्किल लेवल. यस अच्छा, फिर स्टाफ है जिसमें आपकी रिक्रूटमेंट आती है, जिसमें इंडक्शन आती है, जिसमें स्टाफ के को इंडक्ट करना होता है. नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जब प्रॉपरली अपने लोगों को मार्केट से इंडक्ट करता है तो पूरा ख्याल रखता है. हमारा एक क्राइटेरिया होता है, उसमें उनका बाकायदा टेस्टिंग होती है, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, इंटरव्यूज वगैरह वो करके जब उनको इंडक्ट कर दिया जाता है, फिर उनको मैंडेटरी ट्रेनिंग वगैरह देने के बाद देन उनको हम फिर अपनी ब्रांचेस में लेके जाते हैं. जी तो स्ट्रेटेजिक मतलब हमारे गोल्स वगैरह जो होते हैं वो मतलब उसी तरीके से हम लोगों ने जो यानी एक बैलेंस स्कोर कार्ड का हमारा एक सिस्टम है अप्रेजल का. मतलब जो हमारे गोल पहले दिन से सेट हो जाते हैं, डाउन द लाइन हम अपनी टीम में उसी तरीके से स्प्रेड आउट कर देते हैं. अब टीम को आपने उठाना खुद है. एज ए लीडर आपने अपनी टीम्स बनाई हुई हैं, आप टीम पे डिपेंड कर रहे हैं. अपनी टीम को मोटिवेटेड रखें, उन टीम्स के साथ रिजल्ट्स वगैरह डिस्कस करते रहें, उनके साथ आप परफॉर्मेंस पीरियडिकली डिस्कस करते रहें. और जो जो अच्छे आपके मतलब परफॉर्मर हैं, जो कि यानी एक्सीलेंट काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब आउट ऑफ द वे जाके बिजनेस लाते हैं, कस्टमर्स के लिए कंफर्ट लाते हैं, बैंक के लिए बड़ा अच्छा नाम कमाते हैं, उनको हम बाकायदा फिर रिवार्ड भी करते हैं. ये यानी दोनों तरीके से हमारी जो स्ट्रेटेजी की मूव होती हैं कि उनको बाकायदा रिवार्ड भी करें, उनको एक्नॉलेज भी करें, उनको प्रमोट भी करें, उनको हायर असाइनमेंट्स भी दें, उनको इवन हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स पे भी रिकमेंड कर देते हैं कि भाई बाहर से भी हो के आओ, घूम फिर के भी जी आओ, बैंक के लिए भी कुछ काम करो. इस तरीके से जाके ये दोनों तीनों चीजें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होती हैं. एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, एक ऑफिस भी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ट्रेनिंग वाले भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बिजनेस वाले भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रिस्क वाले कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप कह लें कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है अलोन कुछ नहीं कर सकेगा. हम सारे लोग मिलके अपने अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे की हेल्प लेते हुए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हुए, अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर बोर्ड एंड प्रेसिडेंट साहब. हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है इज वेरी काइंड और वेरी ओपन एंड वेरी फ्रेंडली ए पर्सन इन ए वे. तो वो सब लोगों को पूरा कंफर्ट देते हैं. हमारी टीम जो है, हमारी जो चीफ हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त उन्होंने एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया है. तो बड़ा ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट उन्होंने बना दिया है और जी टीम्स में जाके मूव कर गए हैं. मतलब वो नेशनल बैंक खास तौर पे आपको पता है कि हम लोग थोड़े से सरकारी बैंक होने की वजह से थोड़ा सा मतलब यहाँ
थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक सा माहौल था। मैं जरा जरा कॉल किया था, आपको बता दूं। तो यहाँ बॉसिंग शासिंग और ये वो, लेकिन ये था कि अब जो नई टीम आई है, खासतौर पे मैं अपनी ये हमारी ग्रुप चीफ है आसमा, इनका आपको जिक्र करूं, शी इज अ वेरी फ्रेंडली टाइप ऑफ पर्सन, और जो कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, आप यकीन करें कि आई ड्रीम कि मैं इतना बूढ़ा नहीं होता, कुछ साल मेरे पास और भी होते तो इसी सिस्टम में कुछ और कंट्रीब्यूट करता। बड़ा मजा आ रहा है। हम पीरियडिकली मीटिंग्स वगैरह भी करते हैं और प्रॉब्लम्स, तो ऐसे ही बैठे बैठे सारे हमारे प्रॉब्लम्स भी हल होते जाते हैं और हम अपनी स्ट्रेटेजिकली आगे मूव भी करते जाते हैं। एंड कनेक्टिविटी देखें आप, कनेक्टिविटी ऐसे नहीं है कि मैं अलोन हूं, नहीं, हम लोग सारे के सारे कनेक्टेड हैं। कहाँ पे? अपने सीईओ तक पहुंच जाते हैं, अपने प्रेसिडेंट तक पहुंच जाते हैं, बोर्ड तक पहुंच जाते हैं, सबकी एक सी बात होती है। और दैट्स हाउ इट्स बीन। और फिर डाउन द लाइन फील्ड में भी रीजनल हेड्स, अभी कल ही हमने 2-3 मीटिंग्स की हैं अपने रीजनल हेड्स के साथ, उनकी टीम्स के साथ। या तो दैट्स हाउ वी आर मूविंग। बिल्कुल। तो बेसिकली जो आपकी पूरी कन्वर्सेशन थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। इट्स अ वेरी थैंक यू इंटरेस्टिंग सो सॉर्ट मच। ऑफ अ जर्नी फ्रॉम जहां से आपने स्टार्ट किया और फिर पूरा डेवलपमेंट और डिफरेंसेस बिटवीन द नेशनल बैंक एंड जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें। तो ये आपने बहुत सही बोला कि जिस वक्त ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट होते हैं तो बहुत से रेड टेप्स होते हैं, बहुत से चैनल्स ऑफ रिपोर्टिंग होते हैं और उससे चीजें डिले होती हैं। व्हेन द थिंग्स आर मोर ओपन, लोग एक तो मोर रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं सही। और फील करते हैं कि दे आर हर्ड। और दूसरा होलिस्टिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने अभी बात की उसमें, कि बिल्कुल। कोलैबोरेशंस और होलिस्टिक अप्रोच विल बी द न्यू वे ऑफ वर्किंग। द अदर यस। थिंग दैट आपका जो मैसेज था ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए, वो ये है कि हमने अब अपने क्लाइंट्स को एज वेल एज अपनी वर्कफोर्स को यस। टेक्नोलॉजी में एस्ट्यूट करना है, उनको डेवलप एग्जैक्टली। करना है सो दैट दे कैन बिल्कुल। अडेप्ट टू द न्यू मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली। बिल्कुल और सही। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने बताया, और हमारा एक्सपीरियंस था, अभी मैंने कुछ एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था पाकिस्तान में एंड इट वाज ऑन कॉटन कम्युनिटीज। और हमने फार्मर लेवल पे जाकर रिसर्च की थी कि देखने के लिए कि उनके पास क्या सपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो लैंग्वेज बैरियर आता है। एग्जैक्टली। एंड हम बहुत बड़ी वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं जहां वो बैरियर एग्जिस्ट करता है। तो अगेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन की या कस्टमर को रीच करने की जो एक की मैसेज मैंने आपसे लिया वो ये है कि यू टॉक इन देयर लैंग्वेज, एग्जैक्टली। यू अंडरस्टैंड देम एंड यू टॉक इन देयर लैंग्वेज। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक गुजारिश करूं, पता नहीं मेरी उस वक्त तक जिंदगी होगी कि नहीं होगी, आप लोग जवान हैं, तनवीर से भी मैं यही बात कर रहा था कि 15 से 20 साल के बाद आप देखिएगा एक बारी मेरी, आज याद रखिएगा, मैं तो शायद उस वक्त तक नहीं होगा, लेकिन एक जमाना आने वाला है जब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में यहाँ पे बैठ के काम करेंगे और बिल्कुल गूगल जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को ट्रांसफर कर देगा, चाहे वो फ्रेंच में जाए, चाहे वो जर्मनी में जाए, चाहे वो नेपाल में जाए, चाहे वो बांग्लादेश में जाए, सिंगापुर में जाए, हांगकांग में जाए, चाइना में जाए, कहीं पे भी जाए, ऐसा ही यहाँ है, पे आपका वर्कर बैठा हुआ है। यहाँ से ऐसा ही आप इंस्ट्रक्शन उर्दू या पंजाबी में अपना दे रहे हो, गूगल उसको चाइनीज में कन्वर्ट कर रहा है, जापानीज में कर रहा है, बिल्कुल और ये इंस्ट्रक्शंस आगे पास ऑन हो रही है। ये दरमियान में एक मीडियम, ये जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा इंटरप्रेटर बन जाएगा। सही आपको बात है, कोई इंटरप्रेटर लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं होगी। आपको कोई और एम्प्लॉय हायर करने की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई फॉरेन पोस्टिंग वगैरह की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए काम करने का अब स्टाइल ये होने वाला है आने वाले दिनों में। हम लोग पाकिस्तान में काफी पीछे हैं, लेकिन ये है कि ये इंटरनेशनली हो जाएगा, कोरोना बिल्कुल ने हमें ये सिखा दिया है कि अब ये लैंग्वेज बैरियर्स नहीं है। अब ये रिमोट प्लेसेस पे काम करना कोई नई बात नहीं रह बिल्कुल गया है। डूएबल है। आप यू जस्ट नीड टेक्नोलॉजी टू रीच आउट योर कस्टमर, टू रीच आउट बिल्कुल योर बिल्कुल एम्प्लॉय। ठीक है। बिल्कुल अच्छा, अब लैंग्वेजेस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं है, ये ट्रांसलेटर आपके लिए एग्जैक्टली ये काम बिल्कुल करता है। ऐसे, आप उसको जस्ट बताएं कि मैंने ये बात करनी है, फलां से करनी है, वो आपकी बिल्कुल लैंग्वेज ऐसे को ही, ट्रांसफर कर देगा। बिल्कुल ऐसे मेरे ही, लिए मेरी जबान में इंस्ट्रक्शंस आएंगी, और उनके लिए जहाँ पे मैं जाना चाह रहा हूँ, जो उनकी मेरा लैंग्वेज में, कस्टमर है, एम्प्लॉय है, बिल्कुल उनका उनकी लैंग्वेज में हो जाएगा। ठीक तो है। ये हम आने वाले दिनों में देख रहे हैं, या, इंशाल्लाह ऐसे ही या, होगा। ऐसे ही होगा। तो अच्छा, मैं अब कुछ जो हमारे अटेंडीज हैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। हमारे पास 3 मिनट्स हैं, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक 3 क्विक क्वेश्चंस। ओके। ओके प्लीज।
हाँ जी, I've unmuted all the attendees. किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके अपने एंड से क्वेश्चन कर सकते हैं. अच्छा, इन द मीनवाइल जब तक कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये आपने जो जिक्र किया था सस्टेनेबल बैंकिंग का, तो सस्टेनेबल बैंकिंग में अभी HSBC ने स्टार्ट किया और उनका इनिशिएटिव ये था कि जिस तरह से हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं उसी तरह से सोशल सस्टेनेबिलिटी इज रियली इम्पोर्टेंट. सो द बिजनेसेस दे आर वर्किंग विद नाउ, जैसे लोन अप्रूवल्स होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो दे आर नाउ लुकिंग एट कि उनके सोशल इंडिकेटर्स क्या हैं, वो सप्लायर्स को टाइम पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई लेबर स्टैंडर्ड अब्यूज तो नहीं हो रही है, कोई और डार्कर साइड ऑफ चीजें सोशल रिलेटेड तो नहीं हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स एट वर्क को अबाइड किया जा रहा है, हेल्थ एंड सेफ्टी है या नहीं है. सो बैंकिंग सेक्टर इज नाउ मूविंग another step to have a complete picture of sustainability. So that is an interesting development that I recently came across, and I'm sure कि पाकिस्तान में भी इसमें बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा. बिल्कुल हो जाएगा. और एक आपने अच्छा किया मुझे याद करा दिया, एक हमने टर्म पढ़ी थी जब हम यूएस में थे, और ये उस वक्त बड़ी हॉट टर्म थी इन ए वे, SCA. कि व्हाट एग्जैक्टली इज SCA? सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. यानी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, कोई 100 साल बाद चली गई, कोई 50 के बाद गुम हो गई, किसको 100 के बाद 200 साल में, 300 साल में, थोड़े थोड़े पीरियड के बाद, मतलब इवन ज्यादा भी पीरियड हो जाता है तो वो कहीं या अमेलगमेट हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं ऑलमोस्ट. बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, SCA जिसको आप बोलते हैं, ये हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना देखना है कि मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या है. बिल्कुल और इसके ऊपर बिल्कुल मैंने वर्किंग करनी क्या है. बिल्कुल फॉर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान खास तौर पे मैं ये समझता हूँ, हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो हमारे कस्टमर्स के साथ, हमारी कस्टमर्स की सर्विसेज हैं और कस्टमर्स की केयर है. जब तक हम अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, अपने स्टाफ को ट्रेंड करके, खास तौर पे स्टाफ की ट्रेनिंग, एक तो उसका नॉलेज बेस ठीक ठाक होना चाहिए, उसका स्किल लेवल जबरदस्त होना चाहिए. बिल्कुल दूसरा ये है कि दे शुड बी कनेक्टेड विद, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी जरूर है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक्स की तरह. मतलब अब देखें, डिसएडवांटेजेस भी हैं प्राइवेट बैंक्स में. उनके एम्प्लॉयज जो हैं बेचारे इस बात पे ही रहते हैं कि यार कब ये अदारा में निकाल दे, कब हमारा सेठ जो हाँ है जी हमसे बिल्कुल नाराज हो जाए और हम चले जाएं. हमारा क्या पता है यार, हम इतना वो जान मारने की जरूरत. लेकिन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में खास तौर पे बड़े ही लॉयल किस्म के एम्प्लॉयज हैं. मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने 35-36 प्लस ईयर्स जो है नेशनल बैंक में गुजारे हैं. ये अब दाढ़ी सफेद हो गई है, जब मैं आया था तो शायद पूरी तरह दाढ़ी भी नहीं आई. तो आई वाज जस्ट 22-21 या इयर्स ओल्ड, बिल्कुल बिल्कुल जैसे यहाँ. मैंने नेशनल बैंक को बिल्कुल बड़े ही मतलब छोटे लेवल से देखते चला आ रहा हूँ कि मैं अब टॉप पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह हूँ. जी यहाँ पे ट्रेनिंग में अल्लाह तबारक ताला ने इतनी इज्जत दी और इतना नाम दिया और इतना यहाँ पे मार्जिन दिया मुझे काम करने का, और कंट्रीब्यूशन मैंने दिया. मैं समझता हूँ कि ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वजह से ही था, बिल्कुल जिस बिल्कुल अदारे ने मेरा भी ख्याल रखा, एक बिल्कुल एवरेज प्रूडेंस के बंदे को उठा के कहाँ से काम पहुंचा दिया. तो ठीक है. नेशनल बैंक पाकिस्तान जो है इस मामले में मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड केयरिंग बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन. अपने स्टाफ को बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं, और स्टाफ भी इन टर्न जो है ना, इन रिटर्न अगर आप देखें तो बड़ा लॉयल है, गिव बैक. बड़ा ही लॉयल बिल्कुल है इस बिल्कुल अदारे के साथ, बहुत मुखलस है. और जी मैं जी समझता हूँ ये कमिटमेंट होती है किसी भी अदारे को सस्टेनेबल ग्रोथ देने के लिए. यही थैंक यू. लोग थे, यही लोग थे हमारे 2-3 प्रेसिडेंट्स ने उनको एम्पावर्ड किया, और उन्होंने इस बैंक को नंबर 1 बैंक बना दिया, ठीक नंबर है. 1 बैंक ऑफ द कंट्री. और जी जी आप सारे अवार्ड्स भी ले रहे हो, जी और बिल्कुल बड़े मतलब जी सस्टेनेबल ग्रोथ आ रही है पिछले 20 जी 25 सर 30 जी. साल से. अच्छा सर, बस अब हमें अपना टाइम फिनिश होने वाले हैं, तो मीटिंग खत्म करनी Excuse होगी. me, थैंक यू वेरी चलें मच. I like to ask one question, please. जी जी. Binish, you have to now send it via text and then he will ओके, answer later. श्योर. Okay, that's okay. That's Okay. fine. Okay. All right.
थैंक यू वेरी मच गुरा साहब, थैंक यू, आपने आज टाइम दिया और बहुत ही नहीं नहीं यूजफुल नहीं, वेरी इंसाइटफुल काइंड ऑफ यू। मीटिंग रही। सो शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह बात मुझे करते बड़ा अच्छा रहेंगे। लगा। I would like to थैंक यू। acknowledge and thank you people for inviting me over this forum, and it थैंक was यू। a wonderful talk. मुझे अच्छा लगा।